हेलो स्टूडेंट, आज हम इलेक्टिव सब्जेक्ट के एक टॉपिक ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या चीज़ होता है, को प्रेसिपिटेशन क्या है, फोर्स प्रेसिपिटेशन क्या है ना, स्टेप्स उसमें ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ग्राविमेट्रिक एनालिसिस क्या चीज़ है? ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इज ए क्लासिकल quantitative analytical technique in which the amount of an analyte is determined by measuring mass. The analyte is converted to pure, stable and weighable solid through precipitation, filtration, drawing, ignition and weighing. ये जो है स्टेप्स हैं इसके ग्राविमेट्रिक एनालिसिस के मेन स्टेप्स यही होते हैं। पहला है आपका वेइंग, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, तीसरा फिल्ट्रेशन, चौथा ड्राइंग करना है, उसको सुखाना है, इग्नाइट करना है एंड अगेन उसको वे करना है। द मास ऑफ दिस प्रोडक्ट इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द लार्ज सब्सटेंस बेस्ड ऑन नोन स्टाइक्योमेट्रिक। अब प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है? प्रेसिपिटेशन इज ए केमिकल प्रोसेस in which dissolved ion in a solution combine to form an insoluble solid called precipitate. Thus, this solid separate out because its solubility limit is exceed. And what is solubility limit के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या चीज़ है? If you mix silver nitrate with sodium chloride, the ion Ag plus and silver Cl negative react to form an insoluble white solid silver chloride. Solubility refers to the maximum amount of substance that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature and pressure. It indicates how much solute can form stable homogeneous solution. जैसे कि 36 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ml of water at 25 degree centigrade. Means NaCl is highly soluble in water, and 0.2 gram of calcium copper sulfate is dissolved in 100 ml of water at room temperature, means substance is strongly soluble, and 0.02 gram of silver chloride is dissolved in 100 ml water, hence it is considered to be insoluble form in precipitate. Then what do you mean by solubility product? Solubility product is the equilibrium constant for the dissolution of a strongly soluble ionic solid in water. For a salt, इसका solubility product या ionization ऐसा होगा, then इसका solubility product यदि निकाला जाएगा तो KSP is equal to concentration of A and concentration of B. Solubility product is a constant at a given temperature and indicates how much of the salt can dissolve. Hence, we should understand the relationship between ionic product and solubility product, which control the precipitate formation. Ionic product can be defined as the amount of the actual concentration of ions present in solution at a given moment, each raised to the power of its stoichiometric coefficient in the dissociation equation. इसका जनरल एक्सप्रेशन इस किस तरीके से होगा वो दिया हुआ है। इसमें कंडीशंस हैं, यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से कम है तो सॉल्यूशन जो होगा अनसैचुरेटेड होगा और उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यदि आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू इक्वल होगी तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, साम्यावस्था की स्थिति होगी। और यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा, तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा। ये जो कंडीशन है आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो कंडीशन है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे की क्लासेस में भी ये बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट है सिल्वर का ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दिया हुआ है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है। देन रिलेशन बिटवीन आयनिक एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो चार्ट है वो क्या दिखा रहा है? आयनिक प्रोडक्ट कंट्रोल्स डिसोल्यूशन and precipitation. When ionic product exceeds
solubility product ion precipitate at solid. When ionic product is less, solubility product is or solid dissolve at ionic product equal to solubility product, system is at dynamic equilibrium position. ये तीनों कंडीशन को ये शो कर रहा है. देन अगला है इसका पार्टिकल ग्रोथ कैसा होगा. तो इसमें क्या क्या कंडीशंस अप्लाइड हैं. व्हाट आर द कंडीशन फैक्टर्स फॉर द प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन में कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं. तो पहला है लो सुपर सैचुरेशन. प्रेसिपिटेशन मस्ट अकर अंडर लो सुपर सैचुरेशन टू प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्योर एंड ईजिली फिल्टरेबल क्रिस्टल rather than the colloidal particles. दूसरा कंडीशन है कि स्लो एडिशन ऑफ रिएजेंट. द प्रेसिपिटेटिंग reagent should be added slowly with continuous stirring to avoid localized high concentration zone that produce impure precipitation. तीसरा कंडीशन है dilute solution. Using dilute analyte and reagent solution reduce rapid and favor control crystal growth, improving purity and particle size. अगला कंडीशन है टेम्परेचर. यदि हमको कहीं पे प्रेसिपिटेशन करना है कि तो उसके टेम्परेचर को भी हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा. अब आता है टर्म टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन. को प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है ना. को प्रेसिपिटेशन मीन्स यदि कोई प्रेसिपिटेशन की घटना हो रही है, उस प्रेसिपिटेशन के साथ ही इम्प्योरिटी भी साथ साथ ही प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहे हैं, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, को प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन के साथ प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है. और यदि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेशन के बाद भी कुछ और प्रेसिपिटेशन हो पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, है ना. तो जो को प्रेसिपिटेशन होता है वो किस वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ सरफेस एड्जॉर्प्शन. impurity ions get absorbed on the surface of the growing precipitate particle, common in colloidal और finely divided particles. जैसे बेरियम सल्फेट में है, वो बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम और Cl नेगेटिव आयंस को भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेता है ना. Then impurities get trapped inside the crystal lattice during rapid crystal growth. जल्दी जल्दी यदि क्रिस्टल्स बन रहे हैं तो उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ भी उसी में फंस जाते हैं. क्रिस्टल के बीच जो खाली स्पेस होते हैं वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी ट्रैप हो जाते हैं कई बार. फिर है इंक्लूजन्स, जैसे आइसोमॉर्फस रिप्लेसमेंट. एंड इम्प्योरिटी आयन ऑफ सिमिलर साइज एंड चार्ज रिप्लेसेस द मेन आयन इन द क्रिस्टल लैटिस. इम्प्योरिटीज़ उसमें क्या हो जाता है, उसके साथ इंक्लूड हो जाता है ना. तो इसको को प्रेसिपिटेशन को कैसे हम मिनिमाइज़ करेंगे. स्लो प्रेसिपिटेशन बाय एडिंग रिएजेंट ड्रॉप वाइज, धीरे धीरे डालना है. हॉट या डाइल्यूट सॉल्यूशन डालना है. डाइजेस्ट द प्रेसिपिटेशन. डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. आप कोई प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, दैट इज़ नोन एज डाइजेशन. तो प्रेसिपिटेशन प्रॉपर नीचे की तरफ बैठेगा. देन वॉश केयरफुली सूटेबल वॉश लिक्विड. उसको केयरफुली वॉश करना है, उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को हटाना है और वॉशिंग करना है उसका प्रॉपर. देन pH ऑप्टिमाइजेशन. द pH ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी एडजस्ट टू एंश्योर सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन. pH यदि सही नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन भी सही नहीं होगा. फिर मैंने जो आपको स्टेप बताया, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. डाइजेशन ज़रूरी है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है ताकि कंप्लीट प्रेसिपिटेट आए और नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट बैठेगा, ऊपर की तरफ सुपरनेटेड लिक्विड होगा. वो सुपरनेटेड लिक्विड में और थोड़ा सा, जैसे हम बेरियम सल्फेट का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके हमको और चेक करना है कि और तो नहीं कहीं प्रेसिपिटेशन हो रहा है. यदि प्रेसिपिटेशन और हो रहा होगा और हम उसको फिल्टर कर देंगे तो हमारा वे सही नहीं आएगा, है ना. अवॉइड एक्सेस रिएजेंट. कोई भी रिएजेंट है उसको एक हमको प्रिसाइज अमाउंट में ही डालना है. यदि एक्सेस अमाउंट में हम डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन हमारा गलत हो जाएगा. देन प्रॉपर वॉशिंग. जो भी प्रेसिपिटेशन हमने किया उसके बाद उसको वॉशिंग उसकी ज़रूरी है. यदि वॉशिंग नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ साथ
इम्प्योर सब्सटेंस, जैसे ये इसमें बता रहा है को प्रेसिपिटेशन वाला सब्सटेंस है, वो भी इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्लासिकल मेथड है, थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन उसको यदि परफेक्शन से करें हम तो नियर बाय गुड रिजल्ट्स हम पहुंच सकते हैं, रिजल्ट अच्छे रिजल्ट की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन आप उसके स्टेप्स जो मैंने शुरू के इसमें बताया, ये इसको मैं आपको फ्रंट पेज दिखा रही हूँ, इसमें इसके आप स्टेप्स ध्यान रखिए। बीएससी लेवल के लिए ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे पहले हमको वेइंग करना है, देन प्रेसिपिटेशन करना है, देन फिल्ट्रेशन करना है, ड्राइंग करना है, देन इग्नाइट करना है, और इग्नाइट करने के बाद वापस हमको वे करना है। सपोज हम बेरियम सल्फेट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट के प्रैक्टिकल में हमको फिल्टर पेपर ऐसा यूज़ करना है जिसका अपना खुद का कोई वेट ना हो। इसको बोलते हैं वेटलेस एशलेस फिल्टर पेपर। जैसे हम बेरियम सल्फेट के प्रैक्टिकल में मोस्टली फ़िल्टर पेपर जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको उस फिल्टर पेपर को फोल्ड करके ही हम क्रूसिबल के अंदर डाल देते हैं, और क्रूसिबल के साथ ही उसको इग्नाइट होने देते हैं, और उसके बाद उसको क्रूसिबल का वेट, पहले हम खाली क्रूसिबल का वेट ले लेते हैं और फिल्टर पेपर के साथ उसका वेट ले लेते हैं, और इन दोनों वेट के बीच में हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा प्रॉपर रिजल्ट निकल आता है ना। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस थोड़ा सा, और इसमें एक सावधानी आपको चाहिए कि जो भी आप वाटर यूज़ कर रहे हैं वो आप हमेशा डिस्टिल वाटर यूज़ करें, ठीक है। बस इस वीडियो में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में इतना ही। होप आपको इससे प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।